हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द समरी, द थीम एंड मैसेज and the question answers of the 5th unit of our book. The name of the chapter is Wet in the Forest, written by Dhriti K. Lahiri Chaudhary. तो इसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो क्या थीम है और क्या मैसेज है वो देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. So here the theme of the chapter. The chapter Wet in the Forest deals with the issue that animals too have feelings and emotions and they should also be handled with care and concern as they too are part of this existing ecosystem. यहाँ पे इस चैप्टर में हमें ये पता चल रहा है कि आपने देखा होगा वो जो 50 एलिफेंट्स का जो हर्ड था वो अपने टीममेट, अपने कंपेनियन को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था. Even when the villagers chased them away, they came back. Which means that even they are filled with emotions. They are also supposed to be handled with care because वो भी हमारे इस ecosystem का एक part है. What is the message that we get? It teaches us that just like we show out concern and love towards our fellow human beings, so we should do it with the animals as well. और ये हमें बताता है कि जिस तरीके से हम अपने fellow human beings को care, concern, love show करते हैं, वैसे ही हमें animals के साथ भी show करना चाहिए. Okay? Now we are going to start with the question answers. So first question that we have in here is, who were in the team that went to Bishnupur forest and why did they go there? Who joined them afterwards? So कौन कौन उस टीम में था जो बिष्णुपुर के फॉरेस्ट में गए थे, क्यों गए थे और बाद में उन्हें किसने ज्वाइन किया? So there were 3 men in the team that went to Bishnupur forest. ठीक है, हम यहाँ पे who लिख देते हैं, that would be much better. So there were 3 people who went to the Bishnupur forest. कौन कौन थे? S.C. Dey, who was the chief wildlife warden of the state, Subrata Chaudhary, an officer specializing in tranquilizing animals, and the speaker who was a hanger-on. They went to the forest to treat an injured elephant. अब यहाँ जो second question है, why did they go there? They went to the forest to treat an injured elephant. A veterinary officer who had no experience of treating elephants joined them afterwards. बाद में इन्हें किसने ज्वाइन किया था? एक वेटनरी ऑफिसर, एक डॉक्टर ने इनको ज्वाइन किया था जिसको एलिफेंट्स का कोई नॉलेज नहीं था. उसने एलिफेंट्स को कभी पहले ट्रीट नहीं किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वॉज द हर्ड चेस्ड अवे, व्हाई डिड इट हैव टू बी चेस्ड? हर्ड को कैसे वहां से भगाया गया और क्यों भगाना पड़ा उसे? The herd was chased away by a group of villagers who shouted and burst crackers. and bursted crackers. ठीक है, तो यहाँ पे जो herd था उसको villagers ने, एक group of villagers ने chase किया. मतलब they chased it away with the help of, like they shouted and they even bursted crackers. Sounds के through उन्होंने उसे chase किया था, chase away किया था. The herd had to be chased away so that the injured animal could be separated from it. जो पूरा जो herd है उसको भगाना पड़ा ताकि जो injured elephant था उसको उससे separate किया जा सके. The injured elephant could be treated only if it was alone. उसको सिर्फ तभी treat किया जा सकता था जब वो अकेला हो, इसीलिए उस herd को वहां से भगाना पड़ा. Okay? Our next plan of action was to ask the enthusiastic villagers for help to locate our patient. Who was the patient? Who was the patient? The injured elephant. The patient was an injured elephant. Next question है, why did the speaker's team need help to locate the patient? अब ये जो पूरी speaker की जो team थी, इसको help क्यों चाहिए पड़ी? To locate the patient, मतलब उस एलिफेंट को लोकेट करने के लिए इसको हेल्प क्यों चाहिए पड़ी? बिकॉज द इंटायर हर्ड, वो जो पूरा हर्ड था अलॉन्ग विद दिस इंजर्ड एलिफेंट, वो लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे. तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, जो टीम थी, वो इनको एग्जैक्ट लोकेशन बता नहीं पा रहे थे. द स्पीकर्स टीम नीडेड हेल्प टू लोकेट द पेशेंट who is the injured elephant because it had been moving constantly, क्योंकि वो constantly move कर रहे थे with the herd and the speaker's team did not know where exactly the elephant was. Okay, और स्पीकर की टीम को नहीं पता था कि एग्जैक्टली वो एलिफेंट कहाँ पे है एंड दैट इज वाई इनकी जो पूरी टीम थी उनको जरूरत पड़ी विलेजर्स की टू लोकेट द एलिफेंट. नेक्स्ट है,
Which word tells us that the villagers were very willing to help? कौन से words हैं जो ये बताते हैं कि जो villagers थे वो बहुत ज़्यादा help करने के लिए तैयार थे? The word enthusiastic, जो उसमें बोला था कि ये जो enthusiastic villagers थे वो already वहाँ पे आ चुके थे, इसका मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा help करने को तैयार थे, they were willing to help. So the word enthusiastic tells us that the villagers were very willing to help. Next question we have here is, we quickened ours accordingly. In about 5 minutes, its hind legs bent under its body and then it slowly fell over sideways and lay on its side. What did they quicken and why? So we quickened ours accordingly. इन्होंने क्या क्विक किया था? जब एलिफेंट को जैसे ही उन्होंने डार्ट से प्रिक किया तो एलिफेंट ने विंस किया पेन में एंड इट स्टार्टेड टू मूव क्विकली. तो इन्होंने भी अपना जो पेस था मतलब अपनी स्पीड को क्विक किया था. ओके तो व्हाट डिड दे क्विकन एंड व्हाई? क्योंकि एलिफेंट जल्दी जा रहा था तो इनको भी जल्दी जाना पड़ा. दे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? द स्पीकर्स टीम. ओके क्विकेंड देयर पेस. क्या क्विक किया था उन्होंने? अपना पेस. पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड. They were following the injured elephant which had begun moving more quickly because it had been pricked by the dart. वो लोग जो थे इंजर्ड एलिफेंट को फॉलो कर रहे थे जिसने जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसको डार्ट से प्रिक किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ले ऑन इट्स साइड एंड व्हाई? व्हाट ले ऑन इट्स साइड? तो एलिफेंट ले ना, द इंजर्ड एलिफेंट ले ऑन इट्स साइड. जैसे ही उसको डार्ट से पिक किया था तो क्या हुआ? वो ट्रैंक्विलाइज हुआ, बेहोश हुआ, अनकॉन्शियस हुआ और उसने अपने जो हिंड लेग्स थे वो बेंड किया और वो एक साइड जो है गिर गया. सो द इंजर्ड एलिफेंट ले ऑन इट्स साइड. सुब्रता हैड फायर्ड अ डार्ट गन विद अ ट्रैंक्विलाइजर एट द एलिफेंट. सुब्रता ने क्या किया था? उसने एक डार्ट गन से फायर किया था विद अ ट्रैंक्विलाइजर एट द एलिफेंट. एलिफेंट के ऊपर उसने फायर किया. द मेडिसिन टुक इफेक्ट इन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स तक तो वो एलिफेंट दौड़ता था लेकिन उसके बाद उस मेडिसिन ने अपना इफेक्ट दिखाया एंड द एलिफेंट फेल ओवर एंड ले डाउन. और एलिफेंट जो है वो साइड में गिर गया एंड इट लेड डाउन. हाउ डिड द वेट ट्रीट द एलिफेंट? अब वेट ने कैसे किया था ट्रीट? वेट ने सबसे पहले तो उसका घाव देखा, जो उसका वूंड था विच वॉज फुल ऑफ पस. तो उसने वहाँ पे एक डीप कट किया जिससे पूरा बैड ब्लड जो था ब्लैक कलर का इट केम आउट और उसके बाद उसने उसको प्रॉपरली ड्रेस कर दिया था. सो द वेट मेड अ डीप कट अक्रॉस द स्वलन पार्ट ऑफ द एलिफेंट्स लेग. एलिफेंट के लेग में जो स्वलन पार्ट था उसने उसमें वहाँ पे एक डीप कट किया. इट ब्रॉट आउट अ फ्लो ऑफ ब्लैक ब्लड. और उसमें से क्या निकला? पूरा काला खून निकला. Then he treated the leg, gave the animal a shot of long acting antibiotic. फिर उसने उसको पूरा ट्रीट किया और ट्रीट करने के बाद उसने उसको एक इंजेक्शन लगाया, a shot of long acting antibiotic, जो काफ़ी टाइम तक उससे जो है इन्फेक्शन से लड़ सके. and bandage the leg. और उसके बाद उसने लेग को बैंडेज कर दिया. He also gave an antidote to the elephant which would revive it. तो उसके बाद उसने क्या किया? एक एंटीडोट दिया ताकि जो ट्रैंक्विलाइजर दिया वो उसको रिवाइव कर सके, मतलब वो वापस होश में आ सके. सो दिस इज हाउ जो वेट है उसने सबसे पहले कट किया, उसके बाद बैड ब्लड पूरा जो था वो बाहर आया, उसके बाद उसने उसके लेग को ट्रीट किया, फिर उसको लॉन्ग लास्टिंग एंटीबायोटिक दिया, फिर उसने बैंडेज किया और लास्ट में उसको एक एंटीडोट दिया. ओके, 6 स्टेप्स. As responsible managers, we should have stayed around for the moment of its revival. Do you think the speaker and his team were irresponsible? Why or why not? अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबली अगर देखा जाए तो हमें उस एलिफेंट के होश में आने तक वहाँ रहना चाहिए था. बट क्या वो रुक पाए? नहीं रुक पाए. इससे क्या ये पता चलता है कि वो लोग इररिस्पॉन्सिबल थे? नो, द स्पीकर एंड हिज टीम वर नॉट इररिस्पॉन्सिबल. वो लोग इररिस्पॉन्सिबल नहीं थे. Although they wanted to stay around for the elephant's revival, वो वहाँ चाहते थे रुकना, they could not have done that because there was no tree that was strong enough to support a machan where the team could spend the night. वो वहाँ रुकना चाहते थे लेकिन वहाँ पे जो साल ट्रीज थे उसमें से कोई भी ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वहाँ पे वो पूरा ऊपर एक मचान बना सके और रात भर वहाँ पे रह सकें. And it would have been very difficult to spend the night on the ground with about 50 wild elephants nearby. और रात भर ग्राउंड में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इम्प्रैक्टिकल हो जाता, जहाँ पे आपको पता है कि बहुत पास में अराउंड 50 वाइल्ड एलिफेंट्स हैं जो कि आपका भरता बना सकते हैं. ठीक है.
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर्स। द टीम वॉज इम्प्रेस्ड बाय द यंग मैन, वाई? बिकॉज ही न्यू वेयर द इंजर्ड एलिफेंट कुड बी फाउंड, नहीं, ठीक है ये था, लेकिन इसमें इंप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है। ही वॉज ऑलरेडी ट्रीटिंग द इंजर्ड एलिफेंट, वो ट्रीट नहीं कर रहा था, नो। ही वॉज हेल्पिंग द एलिफेंट ऑल्दो ही हैड रीजन टू बी एंग्री विद द एलिफेंट्स, दैट इज द राइट आंसर। उसके पास रीजन था टू बी एंग्री विद द एलिफेंट्स बिकॉज वो उनकी पूरी क्रॉप को डैमेज करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो उस एलिफेंट की मदद कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुब्रता's calmness made the speaker feel concerned। सुब्रता की जो calmness था, मतलब वो जिस काम तरीके से मेडिसिन को बना रहा था, ट्रैंक्विलाइजर को सेट कर रहा था, उससे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा था। क्यों? द स्पीकर हिमसेल्फ वॉज फीलिंग एंशियस, नहीं। Given the urgency of the situation, Subrata was acting too slowly and calmly. Given the urgency, उसको दिख रहा था सामने एलिफेंट है, वो चला जाएगा, उसके बाद भी वो एकदम स्लोली और कामली काम कर रहा था, इसकी वजह से जो था वो बहुत ज़्यादा कंसर्न फील कर रहा था। ओके, Even after the treatment, the speaker's team worried about the elephant. क्यों? मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी जो स्पीकर की टीम थी वो बहुत वरीड थी एलिफेंट के बारे में। क्यों? Because the bandage they used was only for show? नहीं। The elephant did not wake up when they expected it to? Yes, क्योंकि एलिफेंट उठा नहीं था, उसका बॉडी टेम्परेचर तो हाई था ही नहीं, सो एलिफेंट उठा नहीं था टाइम पे, इसीलिए they were concerned. This experience was an adventure because it featured. अब ये पूरा एक्सपीरियंस एक एडवेंचर था। क्यों? क्योंकि इसमें डेंजर और एक्शन था, बट द स्पीकर न्यू इट वुड एंड हैप्पीली, नहीं, स्पीकर को नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। अ डेंजरस प्लेस एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड द स्पीकर वाज सरप्राइज इन द एंड, नो। इसका आंसर है चैलेंजेस एंड एक्साइटमेंट एंड द स्पीकर डिड नॉट नो हाउ इट वुड एंड एंड दैट इज वाई इट वॉज एडवेंचरस, क्योंकि उसके पास चैलेंजेस थे, एक्साइटमेंट था, उसे नहीं पता था हाउ इट वुड एंड एंड दैट इज वाई दिस वॉज फुल ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी नो दैट द एलिफेंट्स इन द टेक्स्ट वर लॉयल एंड पेशेंट। हमें पता है कि जो एलिफेंट्स थे वो लॉयल थे और पेशेंट थे। कैसे पता? बिकॉज दे केप्ट कमिंग बैक टू हेल्प देयर कंपेनियन एंड दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि वो बार बार वापस आ रहे थे, यू नो, दे कुड नॉट बी मेड टू लीव, नहीं, उन्हें भगा तो दिया गया था, और वो लोग जो थे उसके साथ खड़े हुए थे, वो भी थे, लेकिन पूरे टाइम खड़े हुए नहीं थे, वो बार बार अपने कंपेनियन को हेल्प करने के लिए वापस आ रहे थे। इससे पता चल रहा है कि वो लोग लॉयल थे और बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। ठीक है, कमिंग टू अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। Now this text is a non-fiction report. Non-fiction report मतलब जो real events पे based होती है, of how an animal was located and treated inside a forest. ये basically हमें ये बताता है कि किस तरीके से कोई animal होता है जो अगर मतलब injure हो जाए, कोई wild animal, तो उसको आप कैसे locate करते हो और कैसे treat करते हो। Which elements make this text interesting? कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस टेक्स्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं? फैक्ट्स एंड डिटेल्स लाइक प्लेस, टाइम एंड पीपल, यस। पोएटिक डिस्क्रिप्शन तो है नहीं। पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, यस। एंड द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, यस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर्स टीम अकम्प्लिश देयर एम बाय फेसिंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम एट ईच स्टेप एंड देन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। जो स्पीकर का जो टीम था वो हर कदम पे उसे एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और वो लोग एक सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे। अब इसके लिए हमें पूरा एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को, एंड वी हैव टू फिनिश दैट एट फर्स्ट द टीम डिड नॉट नो वेयर द इंजर्ड एलिफेंट वाज एंड हाउ टू लोकेट इट. Then a young man approached them, and at first the team did not know where the injured elephant was, and then a young man approached them and said he knew where the elephant was. फिर एक यंग मैन आया, उसने बताया कि उसे पता था कि एलिफेंट कहाँ है. He had been taking food to the elephant. उसने ये भी बताया कि वो एलिफेंट के लिए खाना लेके जा रहा है. The next problem was to separate the injured elephant from its herd so that it could be treated. अब next problem ये थी कि उस injured elephant को उनके herd से separate करना था ताकि उसको treat किया जा सके. After some discussion, the team decided to chase the herd away. तो थोड़े डिस्कशन के बाद उन्होंने टीम ने क्या डिसाइड किया कि हमें इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से, so that the injured elephant would lag behind, ताकि वो जो injured elephant है वो पीछे रह जाए.
The villagers helped the team by shouting and bursting crackers so that the herd ran away. तो villagers ने उन्हें कैसी हेल्प करी? उन्होंने शाउट किया, क्रैकर्स बर्स्ट किए ताकि एलिफेंट्स वहां से भाग जाएं. Now the team needed to locate the injured elephant. अब टीम के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था? उनको एलिफेंट को लोकेट करना था. Again the villagers helped them by finding the elephant. फिर से villagers ने हेल्प किया to find the elephant. Finally, when the team had treated the elephant, they were worried because the elephant did not wake up when it was supposed to. जब पूरा ट्रीटमेंट हो गया तब अब उन्हें किस चीज़ की चिंता हो रही थी कि एलिफेंट अभी तक उठा क्यों नहीं. The villagers helped by bringing buckets of water from a nearby stream to pour on the drugged animal to keep its body temperature down. अब क्या किया विलेजर्स ने? वो लोग बकेट से पानी भर भर के लेके आए और उन्होंने एलिफेंट के ऊपर डाला ताकि वो जो एलिफेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे. Eventually the team had to leave the spot because they could not stay near the elephant, although they would have preferred to. इवेंचुअली वो टीम को वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वो लोग रात भर वहाँ रुक नहीं सकते थे, लेकिन वो चाहते थे रुकना. लेटर दे हर्ड दैट द एलिफेंट हैड रिवाइव्ड इन द नाइट एंड द हर्ड हैड टेकन इट अवे. बाद में उन्हें ये भी पता चला कि एलिफेंट जो था वो रात में उसने रिवाइव कर लिया था और वो जो हर्ड था वो एलिफेंट के साथ चला गया था. So now this was the last question of here. We are done with the question answers of this chapter. अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? इसका ग्रामर पार्ट करेंगे. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. कहाँ मिलेंगे सारे वीडियोस आपको? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे. क्या करोगे आप? magnetbrains.com लिखोगे. जैसे आप एड्रेस बार में डालोगे ये होम पेज आपके सामने अपेयर होगा. क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे. जैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे. इन चैप्टर्स वाइज वीडियोस में से जो चैप्टर का जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक करोगे एंड योर वीडियो विल स्टार्ट. Now this is the easiest way to find any video on our website. Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe if you found this video helpful. Take care of yourself. Bye.